taken care that basic customs duty on import of areca nut is bound rate by 100%. Not only that, the government has increased the areca nut minimum import price by 3 times, and we have tried to prevent the inferior quality of areca nut into the domestic market. We have also tried to see to it that to prevent destabilization of the domestic prices. In 2013, the areca nut was 110 rupees kg. Now in 2021-23, it is 351 per kg. We are trying to see to it that the domestic market, the prices keep stabilized and does not get destabilized. That we have to understand. Here, I would also like to add one more thing. That the Government of India has constituted a National Scientific Committee, NSC, to address the issues related to leaf spot diseases and yellow leaf diseases. ಬಂಧುಗಳೇ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಆಮದು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾರಕ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೋವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಮದಾಗ್ತಿದ್ದಂತ ಅಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಕಳಪೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 3 ಪಟ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಈ ಹಳದಿ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಮಗ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ತಿಳಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. As I said so, that the Government of India has appointed National Scientific Committee to see to it that yellow leaf disease and the leaf spot diseases, how we can eradicate. But the Government of Karnataka is also proactive, pro-responsive and pro-responsible. And for that, 25 crores have been allocated to see to it that how we can expedite a research to prevent the yellow leaf diseases. That is what we are trying to see. And the same way, rupees 10 crore to the Agriculture and Horticulture Research Center at Tirthahalli in Shimoga district, areca nut also to enhance its productivity. So we are working both ways. We are trying to see to it that yellow leaf disease, how we can do research and fight this disease. We are also trying to see to it that how we can increase the productivity. Both ways the Karnataka government is fighting. आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पटना हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। पटना हिंसा में घायल एक और शख्स की मौत हो गई है। पटना हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना में अभी भी तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, पटना में जो हिंसा हुई थी इस मामले में अब मौत का आंकड़ा एक और बढ़ गया है। पटना हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी तनाव का माहौल हुआ है। आज भी काफी हिंसा बवाल देखने को मिला था। गोदाम में आग लगा दी गई थी। हालांकि पुलिस मौके घटनास्थल पर पहुंची हुई है। हालात पे काबू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल बिहार की कानून व्यवस्था पर लगातार उठ रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है या फिर बदमाशों का राज है। कल हिंसा हुई थी, कल में 2 लोगों की मौत हुई थी। आज उसी हिंसा का एक्शन रिएक्शन देखने को मिला था। एक व्यक्ति की आज मौत हुई है। आगजनी देखने को मिली है। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। कई गोदाम में आग लगा दी गई है। उसके बावजूद भी पुलिस कहां पर है? बिहार पुलिस इस पूरे मामले में क्या भूमिका निभा रही है? इसको लेकर कई सवालिया निशान यहां पर उठ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पटना हिंसा में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रोते बिलखते लोग अब भी प्रशासन से
नाउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि कल ये पूरा मामला हुआ था, तब भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे। आज जब रिएक्शन देखने को मिला, तब भी बिहार पुलिस पर सवाल उठे। है और यहाँ पे ये मुनाड़ी किराए का जो घर है वो हम घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये जो ट्रक था उनके घर के ठीक सामने अनलोड हो रहा था गिट्टी, जिसको लेके हटाने की बात कही गई थी। और उसके बाद जो बच्चा राय और उमेश राय के लोगों ने आके फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। और यहाँ पे इस घर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक जो मुनाड़ी किराया अस्पताल में थे उनकी भी अभी से कुछ देर पहले मौत हो गई थी। इसी ट्रक के अनलोडिंग को हटाने के लिए, अनलोडिंग जो चल रहा था हटाने के लिए बात हुई थी। और इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। और यहाँ पर आप देखिए कि अब जब खबर पहुँची है लोगों की, हमारे साथ के भतीजे हैं, इनके अपने चाचा का निधन हो गया है, इनके घर के 3 लोगों का निधन हुआ था। बात क्या था भाई इसमें? बात ये था कि पार्किंग के लिए गाड़ी हम लोग निकाल रहे थे बाहर जाने के लिए, शादी ब्याह का माहौल है घर में, तो बोले गाड़ी हटा लो। गाड़ी हटाने के लिए बोले, इसी कारण पे वो लोग गया, ड्राइवर बुला के लिए मारने लगा। उसके बाद थाना पुलिस आया, उसके बाद सब मिलके साइड हो गए। उधर से फिर थाना गया, इधर से उस साइड, उधर से अचानक फायरिंग करते हुए आया, सबको गोली मारते। इसके घर में शादी थी? हमारे घर में ही थी। घर में शादी हाँ, थी। वो लोग कौन थे जो लोग फायरिंग करते थे? उमेश राय थे, बच्चे। बच्चा रहे थे, सतीश थे, राम प्रवेश नाला ये लोग थे, उनका बेटा लोग भी था। अब तो पहले से कोई विवाद नहीं था पहले से। देखिए कितनी छोटी सी बात में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद ये जो इलाका है, देखिए गंगा नदी के ठीक किनारे हैं, यहाँ अनलोडिंग का काम करता है। बताया जाता है कि बच्चा राय और उनके भाई इधर से अनलोडिंग करते हैं, बालू का और गिट्टी का उधर जाता है, नाव से उधर जाता है। और इसी को लेकर सारा जो विवाद जो शुरू हुआ था, ये वो घटना असल आपको दिखा रहे हैं इस कि किस तरीके से यहाँ पे पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और आज देखिए कि यहाँ पे पूरा घर में शादी थी और वो माहौल आज मातम में बदल गया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। जेठुली में हालात नियंत्रण करने में प्रशासन पूरी तरीके से फेल रहा है। देखिए 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जो इलाके में तनाव की स्थिति अभी भी पूरे इलाके में पथराव रुक रुक के हो रहा है। जो धुएं उठ रहे हैं वो गैस गोदाम में आग लगा दी गई। आज सुबह में जब 2 मृतक के यहाँ पे 100 पहुँचे हैं, उसके बाद से इस इलाके में फिर से एक बार हिंसा भड़क उठी है। आपको बता दें कल जिस तरीके से सिर्फ पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद पूरे इलाके में जो गोलीबारी हुई थी एक दबंग के द्वारा, और उसके बाद करीब 6 लोगों को, आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को गोलियां लगी थी, जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई। कल देर रात तक हिंसा चलते रहा था, कई घरों में आग लगा दी गई थी, 2 दर्जन से ज़्यादा वाहनों को जला दिया गया था। और उसके बाद आज सुबह में फिर अफवाह उड़ी कि एक और जो चनाई दिख रहा है, जो जख्मी थे उनकी मौत हुई है। इसके बाद से फिर इलाके में हिंसा भड़क उठी थी। और एक बार देखिए जब 100 पहुँचा है उसके बाद किस तरीके से फिर वहाँ पे सारे वाहनों को रोक दिया जा रहा है, पुलिस वाले के साथ पथराव किया जा रहा है। और एक बार फिर जो गांव वाले थे, जो आक्रोशित लोग थे, वो फिर से वहाँ पे एकजुट हो गए हैं और वहाँ पे फिर पुलिस पर जो है पथराव किया जा रहा है। सारी गाड़ियों को वहाँ से डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। और जो लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो वाहनों को रोकने से मना कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं, किस तरीके से ये पूरा जो इलाका, अभी पूरा भी हंगामा चल ही रहा है क्या उधर? हैं? फायरिंग चल रहा है? हाँ? देखिए अभी पुलिस फायरिंग कर वहाँ से लोगों को खदेड़ रही है, तमाम गाड़ियों को रोक दे रही है। स्थिति ये है कि सुबह से जो मीडिया के कैमरे को तोड़ दिया गया, कई लोगों को मारपीट किया गया है। और हालात ये हैं कि वहाँ पुलिस वाले जो हैं वो वहाँ पर जो तैनात थे वो अब उनके साथ उनको फायरिंग की नौबत आ रही है। हालांकि लोग कह रहे हैं, आप स्थिति देखिए कि यहाँ से जो हम दिखाएं, कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा जूम करके दिखाएं कि पुलिस वाले के साथ जो पथराव शुरू हो चुका है और भीड़ जो है पुलिस वालों को लगातार पथराव कर रही है। और उसके बाद हालात को नियंत्रित करने में यहाँ प्रशासन फेल है। हालांकि एक बात साफ है कि यहाँ पे जितनी तादाद में पुलिस बल होनी चाहिए थे, वो पुलिस उतनी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद नहीं है, जिसका नतीजा है कि इस तरीके से जो भीड़ है वो पुलिस पर भारी पड़ती दिख रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। देखिए अभी भी जो घरों से जो धुआं है वो निकल रहा है, पूरी तरीके से जो आग लगा दी गई थी। और कल से पुलिस को यहाँ स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करनी जा रही है। ये मैरिज हॉल है, जो बताया जा रहा है कि बच्चा रहा है जो एक हमलावर था, वो उसका वो मैरिज हॉल है। और वहाँ भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ भी पूरी तरीके से आग लगाई गई थी। और जिस तरीके से कई गाड़ियाँ यहाँ भी लगी हुई थी, जिसे आग के हवाले कर दिया गया था। पूरा जो मैरिज हॉल पूरा जलकर राख हो चुका है। जो यहाँ पे वाहन थे वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गए हैं। और स्थिति यहाँ अभी भी वही तरह पर अभी तक भी आग जो है, आग की लपटें अभी भी यहाँ पे दिख रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तबाही मची थी कल जो हुआ। लेकिन कल के बाद प्रशासन ने शायद
उस घटना से सीख नहीं लिया और यहाँ पे आज सुबह से जो हालात बिगड़े हैं उसके लिए निश्चित तौर पे कहेंगे कि स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार थी, क्योंकि यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण समझने में देरी हुई और सुबह में जब पुलिस फोर्स यहाँ पहुँची तो देर हुआ और इसका नतीजा निकला कि आज सुबह फिर दोनों गुट आपस में यहाँ भिड़े थे और उसके बाद यहाँ पे फिर से आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और बताया जा रहा है कि जो गैस गोदाम जो था वो इन्हीं इलाके में था और वहाँ से वहाँ लगाने की कोशिश की गई थी। आज भी यहाँ पर इसकी भारी पैमाने पर यहाँ जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे तैनात है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। इस इलाके में आज भी तनाव है। आज सुबह से ही रुक रुक कर यहाँ पे जो उपद्रवी है वो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए ये जो घर है वो उमेश राय जो आरोपी थे उनका घर है और किस तरीके से यहाँ पूरे घर में आग लगा दी गई थी, एसी जला दी गई थी। इसके अलावा अंदर में हम देखें तो जो गैरेज है, गैरेज में जो कई गाड़ियाँ खड़ी थी उन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था और देखिए कई गाड़ियाँ जो गैरेज में रखी हुई थी उसको आग के हवाले कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात कि पूरे घर में जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, उन्हें किसी तरीके से पुलिस ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला था। लेकिन अभी जो कल रात के बाद जब सुबह में भी यहाँ पर उपद्रवी तत्व एक बार फिर हमला बोला था और यहाँ पे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं और अभी भी रुक रुक कर यहाँ पे भारी तादाद में पथराव हो रहा है। जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, पथराव कर रहे हैं और देखिए कि भारी तादाद में यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये पुलिस बल यहाँ पे तैनात हैं, कल से ही 24 घंटा होने को हैं, लेकिन अभी तक स्थिति यहाँ पे नियंत्रित नहीं हो पा रही है। ये जो मैरिज हॉल था, जो बताया जा रहा है कि बच्चा राय का था, जो हमलावर थे, उसका मैरिज हॉल है जिसको पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया था। और इसके बाद अगर हम आज की स्थिति की हम बात करें तो यहाँ पर ये देखिए गंगा के किनारे है और यहाँ पर जो मैरिज हॉल के जो बगल का इलाका है वहाँ भी पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई थी। आज सुबह में भी उपद्रवी तत्वों ने यहाँ पर आकर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था और भारी तादाद में यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई थी। देखिए अभी भी जो मकानों में जो लगी हुई आग है वो धू धू कर जल रहा है। इस घटना का कारण पार्किंग को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है, लेकिन अगर घटना के मूल में जाए तो इसके पीछे दूसरी ही कहानी सामने आती है। बताया जाता है कि उमेश राय और चनारिक राय का इसमें वर्षों से वर्चस्व का इस इलाके में रहा है और हाल के दिनों में जो चनारिक राय हैं उनने अपनी जो संपत्ति है, अब उनका भाइयों का दबदबा इलाके में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। उमेश राय पहले भी समाजवादी पार्टी के टिकट से यहाँ से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके थे और उनका राजनीतिक क्षेत्र में भी कई रसूख था। चनारिक राय पूर्व में वार्ड पंचायत सदस्य थे और वो जो घर आप देख रहे हैं जो वो चनारिक राय का है, जबकि इस तरफ का जो घर है वो उमेश राय का, यानी कि आमने सामने ही दोनों का घर था। विवाद की जड़ एक 3 कट्ठा की ज़मीन है जिसपे दोनों ही पार्टी अपने अपने दावे कर रहे थे और इनके लेके कानूनी लड़ाई भी चल रही थी। इसी को लेकर दोनों परिवारों के बीच में ये झगड़ा हुआ था और उसके बाद स्थिति ये बनी कि कई दिनों से ये तनाव इस इलाके में चलता आ रहा था और कल एक बहाना बना पार्किंग को लेके, जो यही इसी रास्ते में आप देख सकते हैं गाड़ी को पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद फायरिंग की एक घटना यहाँ पे हुई थी। हालांकि लोग जो बता रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि दोनों के ही अपनी राजनीतिक रसूख थे और रसूख का दोनों अपना इस्तेमाल करते थे और यही वजह है कि अब जब ये घटना घटी है तो पूरे इलाके में, चूँकि एक ही यादव जाति का इस पूरे इलाके में दबदबा है और दोनों यादव जाति से ही आते हैं, इस वजह से दोनों अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे और उसी क्रम में इस घटना को अंजाम दिया गया था, क्योंकि बच्चा राय और उमेश राय चाहते थे कि पूरे इलाके में उनका दबदबा हो। दूसरा जो बड़ा कारण था, ये आप जो रास्ता देख रही है घाट की तरफ जाता है, जेठुली घाट पर, जिस पर जो पूरी घाट के किनारे का इलाका है उस पर बच्चा राय और उनके भाइयों का कब्जा था, जिसको लेके भी यहाँ पे जो दूसरे जो ग्रामीण हैं वो विरोध जताते थे। वो इस पे अपना जो घाट है वो गांव को देने की बात करते थे, जिसको लेके भी विवाद इनके बीच में चला रहा था। और कल जो घटना घटी इन सब के बीच यही था कि दोनों को वर्चस्व दिखाना था अपनी, और इसके बाद इस पूरी घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़। हर्षद पटन के ग्रामीण एसपी हैं, कल रात से यहाँ पे मुस्तैद हैं सर। आज फिर कई मीडिया कर्मी को भी हमले हुए, कैमरे तोड़ दिए गए, आज क्या सिचुएशन? सुबह से कुछ उपद्रवी तत्वों ने यहाँ पे थोड़ा सा आगजनी करी। एक तो यहाँ पे गोदाम है वहाँ पे आगजनी करी, लेकिन हम लोगों ने तुरंत उस पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड ने उस पर आग बुझाई और हम लोग ने पूरा फोर्स हमारा डिप्लॉयड था। अगल बगल के थाना ने भी आके सहयोग करते हुए यहाँ पे सामान्य स्थिति स्थापित कर दी है। गिरफ्तारी अभी तक क्या है? गिरफ्तारी 7 लोग जो हत्या में शामिल थे उनकी अरेस्टिंग हो गई है। बाकी जितने नामजद हैं उन सबकी छापेमारी लगातार चल रही है। अब जो मॉब है उसका डिमांड क्या, कुछ डिमांड नहीं है?
अभी ये लोग पीड़ित पक्ष है, इन लोगों को जो है इन लोगों के साथ घटना हुआ है। बाकी इन लोगों से भी हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। इनका यही डिमांड है कि जो घटना में शामिल उनके अरेस्टिंग हो, उसमें से हमने 7 की अरेस्टिंग कर ली है, बाकी भी जल्द अरेस्ट हो जाएंगे। देखिए, ये पटना के ग्रामीण एसपी थे सैयद इमरान मसूद, जो लगातार कल से यहाँ पे कैंप किए हुए हैं और उसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि अभी भी जो है ये इस इलाके में जो दहशत है वो कायम है। अभी भी रुक रुक कर यहाँ पथराव हो रहा है, गोलीबारी हो रही है और जिसके बाद स्थिति बिल्कुल तनावपूर्ण बनी हुई है। अभी भी स्थानीय लोग जो हैं काफ़ी दहशत में हैं और जो डिमांड है वो है कि गिरफ्तारी, लेकिन अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। रोजगार मेले के लिए बहुत बहुत बधाई। जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। लेकिन जिस सेवा में आज आप प्रवेश कर रहे हैं वो सिर्फ आपका जीवन बदलने का नहीं, बल्कि वो व्यापक बदलाव का माध्यम है। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। आप में से तो अधिकतर साथी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने वाले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। साथियों, केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। बीते कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। देश भर में जहां भी भाजपा सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां भी बड़े स्तर पर इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज इसमें उत्तराखंड भी जुट रहा है। साथियों, हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये चीज हमें बदलनी है। इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवाओं और ये हमारी युवा पीढ़ी अपने गांवों की तरफ लौटे। इसके लिए पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज आप देखिए, इतनी सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बिछ रही हैं, यानी उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश हो रहा है। इससे दूर सुदूर गांवों तक आना जाना तो आसान हो ही रहा है। बड़ी संख्या में रोजगार भी बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के काम में श्रमिक हो, इंजीनियर हो या फिर रॉ मटेरियल के उद्योग हो, छोटे छोटे कारोबार हो, हर जगह काम के अवसर बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी
डिमांड बढ़ने से युवाओं को नए मौके मिल रहे हैं। पहले इस प्रकार के रोजगार के लिए भी उत्तराखंड के मेरे ग्रामीण नौजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को शहर की तरफ भागना ही पड़ता था। गांव गांव में इंटरनेट सेवा, डिजिटल सेवा देने वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी हजारों युवा काम कर रहे हैं। साथियों, जैसे जैसे उत्तराखंड के दूर सुदूर के इलाके रोड, रेल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे टूरिज्म सेक्टर का भी विस्तार हो रहा है। नए नए पर्यटन स्थल टूरिज्म मैप में आ रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के युवाओं को वही रोजगार घर के नजदीक मिल रहे हैं जिसके लिए वे पहले बड़े शहरों का रुख करते थे। मुद्रा योजना टूरिज्म में रोजगार और स्वरोजगार को बल देने में बहुत मदद कर रही है। इससे दुकान, ढाबे, गेस्ट हाउस, होम स्टे ऐसा व्यवसाय करने वाले साथियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के मिल रहा है। पूरे देश में अभी तक 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिए गए हैं। ये ऋण पाने वाले लगभग 8 करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं। इसमें भी महिलाएं, SC, ST, OBC वर्ग के हमारे साथी, उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड के हजारों साथी भी इसका लाभ ले चुके हैं। साथियों, भारत के युवाओं के लिए ये अद्भुत संभावनाओं का अमृतकाल है। आपको इसे अपनी सेवाओं के माध्यम से निरंतर गति देनी है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप उत्तराखंड के लोगों की उत्तम सेवा करेंगे। उत्तराखंड को आप उत्तम बनाने में योगदान देंगे और इससे हमारा देश भी सशक्त होगा, समर्थ होगा, समृद्ध होगा। तालमेल की बात पुरानी होगा। तालमेल की बात करें, मेरी बात सुनिए। अंतिम निर्णय जनता को करना है, कौन से लोग, कौन से नेता, कौन सा प्रत्याशी, कौन सी विचारधारा उनको पसंद है। और ये बात मैंने अभी कही कि प्रधानमंत्री जी को दौसा की याद आई चुनाव से पहले, ओवैसी साहब को टोंक की याद आई चुनाव से पहले। तो हम सब जानते हैं कि वो चुनाव से पहले कौन सा नेता किसको टारगेट करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है लोगों के ऊपर और राय सारी जनता ने मुझे दशकों से आशीर्वाद दिया है, आगे भी देगा। आपका सपना पूरा नहीं होगा। सर तालमेल वाली बात आई है कि ईडी ने कुछ छापे डालने की कोशिश करी है रायपुर में। अब छत्तीसगढ़ में 2 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। तो ये एजेंसीज का जो दुरुपयोग है और लोगों के अंदर एक भय बिठाने की जो कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, बहुत निंदनीय है। और पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की जो कार्रवाई करने की इन्होंने आज पहल करी है, वो अपने आप में बहुत समझता हूँ मैं दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन बातों से, इन हथकंडों से कांग्रेस पार्टी का डरने वाली नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जानबूझ के किया गया है। अधिवेशन से ठीक 2 दिन पहले रायपुर के अंदर जो आज उन्होंने सुबह सुबह कार्रवाई करी है, वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं वो घबरा रहे हैं कि कांग्रेस और मजबूत होती चली जा रही है और कार्यकर्ताओं, नेताओं को दबाव में रखने की एक रणनीति मुझे लगता है केंद्र सरकार की। बीजेपी को तो आपने बहुत कोसा, लेकिन पेपर लीक पर आपने कोई बात नहीं कही। युवाओं से बहुत बड़ा जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। नहीं, मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, हाँ। जो नौजवान हैं उनकी चिंता हमको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और इस प्रकार की जो घटनाएं कभी हुई हैं उस पर जो कदम सरकार ने उठाए उसके अलावा और भी उठाने चाहिए, ताकि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, जो इस पूरे मास्टरमाइंड हैं, इस पूरे षड्यंत्र के, उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बार बार नौजवानों का अगर विश्वास टूटता है, उनका अगर इकबाल ख़त्म हो जाएगा सिस्टम के अंदर, तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली पीढ़ी को आएगी। तो नौजवानों को
प्रोत्साहित रखने के लिए, उनके हौसले बुलंद रहें, उनका विश्वास बना रहे इस व्यवस्था के अंदर, ये बहुत जरूरी है। रायगढ़ अधिवेशन जा रहे हैं आप? हम सब लोग जाएंगे रायगढ़। राजस्थान के लिए क्या आगे चुनाव है? अब छत्तीसगढ़ के बाद कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन नीचे कर लो भाई, XYZ हो रहा है, तो ये एजेंसीज का जो दुरुपयोग है और लोगों के अंदर एक भय बिठाने की जो कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, बहुत निंदनीय है। ठीक है। और पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की जो कार्रवाई करने की इन्होंने आज पहल करी है, तो अपने आप में बहुत समझता है दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन बातों से, इन हथकंडों से कांग्रेस पार्टी का डरने वाली नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जानबूझ के किया गया है। अधिवेशन से ठीक 2 दिन पहले रायपुर के अंदर जो आज उन्होंने सुबह सुबह कार्रवाई करी जी, वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं वो घबरा रहे हैं जी। कांग्रेस और मजबूत होती चली जा रही है और कार्यकर्ताओं नेताओं को दबाव में रखने की एक रणनीति मुझे लगता है केंद्र सरकार की। बीजेपी को तो आपने बहुत कोसा, लेकिन पेपर लीक पर आपने कोई बात नहीं कही। युवाओं से बहुत बड़ा जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, जो नौजवान हैं उनकी चिंता हमको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और इस प्रकार की जो घटनाएं कभी हुई हैं, उस पर जो कदम सरकार ने उठाए हैं, उसके अलावा और भी उठाने चाहिए, ताकि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, जो इस पूरे मास्टरमाइंड है, इस पूरे षड्यंत्र के, उन तक पहुँचना बहुत जरूरी है। बार बार नौजवानों का अगर विश्वास टूटता है, उनका अगर इकबाल खत्म हो जाएगा सिस्टम के अंदर, तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली पीढ़ी को आएगी। तो नौजवानों को प्रोत्साहित रखने के लिए, उनके हौसले बुलंद रहें, उनको विश्वास बना रहे इस व्यवस्था के अंदर, ये बहुत जरूरी है। रायगढ़ अधिवेशन जा रहे हैं आप? हम सब लोग जाएंगे रायगढ़। राजस्थान के लिए क्या आगे चुनाव है, क्या कहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी? चुनाव तो भी मैं कल मेघालय जा रहा हूँ, परसों में कर्नाटक में था, चुनाव वहाँ पर भी हैं, नागालैंड में भी हैं और कर्नाटक में मई में होंगे। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों स्टेट्स के चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। और मुझे लगता है कि जो अब तक हम लोगों ने काम किया है और आने वाले 9 महीने बचे हैं, इसमें हम लोगों को पूरी ताकत के साथ उतरना पड़ेगा। और अगर अच्छा तालमेल रहेगा तो ये परिपाटी हम तोड़ सकते हैं। महेश जोशी जी ने रिजाइन कर दिया है। जो राजस्थान के संदर्भ में अपने सुझाव आला कमान को दे रखे हैं, उस पर कुछ कार्रवाई उन्होंने करी है और मैं समझता हूँ आगे करने की ज़रूरत है। और 23 में जो चुनाव होंगे उसमें हम लोग जीत सकते हैं। और आगे क्या करना है इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी को करना है। और मुझे पूरा विश्वास है तालमेल की बात करिए आप, सही समय पर सही निर्णय लेंगे। महेश जोशी जी ने रिजाइन किया है, कहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, तो क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? इसका जवाब तो प्रभारी महोदय दे सकते हैं। सुझाव क्या दिए गए? तालमेल की बात करिए आपने। तालमेल की बात करिए, तालमेल की बात करिए, किस तरह के तालमेल की बात कर रहे हैं? सब ओवैसी कह रहे हैं कि आप कहीं और जाइए चुनाव लड़ने के लिए। भाई मैं तो कहता हूँ ऐसा है जी, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है अपने भाषण देने का, अपनी विचारधारा को प्रचलित करने का, अपने संगठन को मजबूत करने का और चुनाव लड़ने का। और सभी का स्वागत है, इसमें किसी को रोक नहीं है। लेकिन सवाल तब उठता है कि चुनाव से ठीक पहले आप यहाँ पर आएँ, चाहे ओवैसी जी हो चाहे कोई भी हो। आज की सबसे बड़ी खबर से छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने छापेमारी की है और इससे कांग्रेस आग बबूला उठी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पार्टी के अधिवेशन से पहले उसके नेताओं के घरों पर ईडी की छापेमारी मोदी सरकार की तानाशाही है। कांग्रेसियों ने कहा कि ईडी का नया नाम और काम अब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र को खत्म करना हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि यह अमृतकाल नहीं, अघोषित आपातकाल है। पूरी रिपोर्ट देखिए। ये धमकी की राजनीति से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इसका कड़ा मुकाबला करेंगे। हमारी शराफत को हमारा गहना मानो, हमारी कमजोरी मत मानो। प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपति गौतम अडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है रोज, उस पर तो कोई जांच नहीं होती। सियासत का फलसफा कुछ यूं बदला, गोया मकसद ही हो गया बदला। भारत जोड़ो यात्रा से जोश पाकर देश की सबसे पुरानी पार्टी जिस शहर में अपनी 85वें अधिवेशन की तैयारी कर रही थी, पौ फटने से पहले उसी शहर में ईडी ने दबिश दी। दर्जन भर कांग्रेसी नेता छापेमारी की जद में आए। घर से दफ्तर तक दस्तावेजों की छानबीन होने लगी। कांग्रेसियों की पलटन मीडिया के सामने आई। ईडी की कार्रवाई को सियासी बदला बता गई। ईडी की नई परिभाषा भी बता गई। ये प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति को प्रोत्साहन देगा। हमारा महा अधिवेशन चलेगा 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को। हाथ से हाथ जोड़ो जो टैगलाइन है उसके आधार पर ये महाअधिवेशन हो रहा है, वो चलता रहेगा। ये धमकी की राजनीति से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
हम इसका कड़ा मुकाबला करेंगे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले हैं। छत्तीसगढ़ में आज सुबह से लगातार रेड्स चल रही हैं। हमारा महाअधिवेशन भी वहां होने वाला है, ये आप सब जानते हैं। रायपुर में ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस आग बबूला हो उठी। रायपुर से भिलाई तक जब ईडी छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों की सीक्रेट फाइल खोज रही थी, दिल्ली में कांग्रेसियों ने बीते 8 सालों में हुई ईडी की कार्रवाई की फाइल खोल दी। मोदी सरकार की मंशा पर सवालों के शूल बरसाने लगे। कुछ जानकारी देना चाहता हूं। 2014 से अगर अपन शुरू करें, कांग्रेस पे 24 बार, अलग अलग नेताओं पर कांग्रेस में 24 बार रेड हुई ईडी की। वहीं टीएमसी पर 19 बार हुई, एनसीपी पर 11 बार हुई, शिवसेना पर 8 बार हुई, डीएमके 6, आरजेडी 5, बीएसपी 5, बीएसपी 5, टीडीपी 5, आईएनएलडी 3, वाईएसआईआरपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1, एसबीएसपी 1। हमारे कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल जी, हमारे भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, गिरीश देवांगन एक निगम के चेयरमैन हैं, आरपी सिंह एक प्रवक्ता हैं, विनोद तिवारी हैं और सनी अग्रवाल ये भी एक निगम के चेयरमैन हैं। इनके कार्यालयों पर, इनके निवासों पर सुबह से ईडी की कार्रवाई चल रही है। हमारी शराफत को हमारा गहना मानो, हमारी कमजोरी मत मानो। हम भी कभी आएंगे और जहां हैं वहां भी कुछ दिखा सकते हैं आपको। हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला अभी, जिसकी जानकारी रोज कुछ ना कुछ आती रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपति गौतम अडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है रोज, उनके कारनामे की, सब गैर कानूनी कारनामे, उस पर तो कोई जांच नहीं होती। और भारत जोड़ो यात्रा में जो हमने सफलता हासिल की है, जो परिवर्तन हम लाए हैं हमारे राजनीति में, हमारे संगठन में, वो बरकरार रहेगा। एंड दिस अघोषित आपातकाल, द अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वी हैव इन आवर कंट्री टुडे। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी से बौखलाई कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर सत्ताधारी पार्टी को आईना दिखाया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने येदियुरप्पा के जिक्र के जरिए बीजेपी के वॉशिंग मशीन होने का मतलब भी समझा दिया। मैं आपको हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा एक व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, अलग अलग रंग के पेपर भारतीय जनता पार्टी निकाल रही थी। साहब ये नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, इन सब में शामिल है। 2014-15 में शारदा चिटफंड को लेकर इनके यहां सीबीआई ने रेड भी की थी। आज हेमंता बिस्वा शर्मा फेयर एंड लवली बन के निकले हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं। और मुझे तो नहीं मालूम, अगर आप में से किसी को जानकारी हो उन केसेस का क्या हुआ तो आप साझा करिएगा। शुवेंदु अधिकारी एक और नाम मैं आपको बताता हूं, येदियुरप्पा तीसरा नाम मैं आपको बताता हूं, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसे अनेक नाम हैं। कांग्रेसियों की जुबानी बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार की कहानी में अडानी का नाम भी आया। सुलगते सवालों के साथ सत्ता की जानिब पैगाम आया। बीजेपी भी कांग्रेस की पोल खोलने लगी, ईडी के पक्ष में जोर जोर से बोलने लगी। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से 2 सवाल करना चाहते हैं और एक सलाह भी देना चाहते हैं। पहले सवाल फिर सलाह। जब मीडिया कुछ छापता है आप उस पर छापा डाल देते हो। जब विपक्ष संसद में आपसे कुछ सवाल करना चाहता है, आप कार्रवाई से वो नाम निकाल देते हो आपके दोस्त का, एक्सपंज कर देते हो। न्यायपालिका इस देश के इतिहास में पहली बार आपने इतनी मजबूर कर दिया न्यायपालिका को कि उनको सार्वजनिक रूप में आकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी। हमारा दूसरा सवाल है फादर ऑफ हिपोक्रेसी से, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं, कि आप अपने परम मित्र गौतम अडानी के महाघोटाले में
अधिकांश साथी हिस्सा न ले ले तब तक यह बैठक आज जारी रहेगी और कल भी बैठक होगी। तो प्रयास इसी बात का है कि सभी जिला के साथी बोल ले, महत्वपूर्ण साथी बोल ले, तो इसलिए 2 दिनों की बैठक रखी गई। इसमें बैठने में फिर हम कहेंगे कि आपको कठिनाई होगी, लेकिन आपसे आग्रह यही है कि आप शांति बनाकर रखिएगा, तब विमर्श में हिस्सा ले पाएंगे। अलग अलग साथी टेलीफोन के माध्यम से, बहुत सारे साथी मिलकर, बहुत सारे साथी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के संपर्क में रहे हैं। आप ही में से तो अलग अलग जो अपनी बात आप हम लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। पटना में हम साथ करने वाले सभी नेताओं ने, साथियों ने मिलकर विमर्श किया कि अलग अलग जो साथी संपर्क करके अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्यों नहीं उनके साथ बैठकर एक बार सामूहिक रूप में बात हो जाए। तो इसीलिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल इत्मीनान से आप रहिए। दिन के भोजन का भी इंतजाम साथियों ने किया है। शाम में चाय भी मिलेगी आपको, रात का भोजन भी मिलेगा, कल सुबह का नाश्ता भी मिलेगा, कल दोपहर का भोजन भी मिलेगा। तो इंतजाम है, लेकिन बीच में कोई साथी नारा नहीं लगाएंगे। दूसरा साथी कोई बोल रहा हो तो बाकी साथी बीच में आपस में बात नहीं करेंगे। मतलब पूरे तौर पे व्यवस्थित तरीके से बैठक चले। यहां से आपने अभी सुना ही कि अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष मंडल का प्रस्ताव आया। आप सब लोगों ने ताली बजाकर समर्थन किया कि बैठक की अध्यक्षता एक अध्यक्ष मंडल करेगा। अध्यक्ष मंडल में शामिल हैं पूर्व विधायक और पार्टी की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष डॉक्टर रणविजय सिंह जी। इसमें शामिल हैं जितेंद्र नाथ जी, पार्टी की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष। शामिल हैं सुभाष कुशवाहा जी, पार्टी की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष। शामिल हैं रमेश कुशवाहा जी, पार्टी के विधायक रह चुके हैं सिवान जिला में। और रेखा गुप्ता, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो पार्टी की प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष हैं। तो इतने 5 लोगों का अध्यक्ष मंडल है जो शामिल हैं। अरे बैठे कहीं बैठेंगे ना, कहीं जा बड़े तो अध्यक्ष मंडल इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। अब अध्यक्ष मंडल के लोग मिलकर किसी साथी को संचालन की जवाबदेही देंगे, कैसे करेंगे इनका विषय है। यहां से जिस साथी का नाम पुकारा जाएगा वही साथी अपनी बात रखेंगे। जिनका नाम नहीं पुकारा जाएगा बीच में नहीं बोलेंगे, आपस में भी बात नहीं करेंगे। हाँ, जिनका नाम यहां से पुकारा जाए बोलेंगे। और किसी साथी को लगे कि मेरी बात भी इस बैठक में जानी चाहिए, तो यहां से लोग आपसे कहेंगे कि आप अपना नाम दीजिए, तब आप अपना नाम भी पर्ची पर लिखकर दीजिएगा। तब दीजिएगा जब यहां से मांगा जाएगा। तो
उस तरीके से भी आप बैठक के विमर्श में शामिल हो सकते हैं। तो जो भी तरीका रहेगा ही कि अधिक से अधिक लोग भाग ले लें, तो इसमें भी आपका सहयोग चाहिए। आप बोलिए तो उस वक्त आप बिल्कुल जो बात आपको कहनी हो सीधे टू द पॉइंट आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ बहुत सारे नेता हैं, सब लोगों का नाम लेने लगिएगा संबोधन में, तो उसी में 4-5 मिनट लग जाए तो मौका मिल जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए साथ ही साथ सब लोग चाहेंगे कि हम सब लोग भाषण दे लें, अपनी बात कह लें, तो 2 दिन पड़ेगा। तो तमाम तरह से एकोमोडेशन के बाद को जब हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जनता के सवालों पर आप सब लोगों ने साथ दिया है उसको आगे बढ़ाने में। तो इसके लिए मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। लेकिन आपसे भी अपेक्षा है कि आज की बैठक के संचालन में आपका भी सहयोग चाहिए। सहयोग का मतलब कि जिस तरह से आपसे अपेक्षा की गई है, लिखकर आपको आमंत्रण दिया गया है, तो जितना आमंत्रण दिया गया है, जितना हिस्सा आपके जिम्मे आमंत्रण के रूप में दिया जाएगा, उतना ही आप लीजिएगा, उससे ज्यादा लेने का प्रयास नहीं कीजिएगा, वरना कठिनाई पहला टर्म विधायक बने थे, हम सम्मान की बात करें, पहला टर्म विधायक बने थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको फर्स्ट टर्म वाले को विरोधी दल का नेता बनाया। वो उप नेता थे, नेता थे भी नहीं विधायक दल के। नेता का जब चुनाव हो रहा था तो 6 टर्म 7 टर्म वाले विधायक थे उस पार्टी के, कोई तैयार नहीं थे इनको नेता स्वीकार करने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उप नेता को ही विरोधी दल का नेता घोषित करवा दिया, उनको सम्मान मिला। इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने वो एक नौजवान थे, उस समय पहली बार विधायक थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको सम्मान करना। फिर चले गए, बहुत अच्छा बात है, चले गए। फिर वापस आ गए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इच्छा व्यक्त की कि हमको राज्यसभा जाना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा चले जाइए, राज्यसभा चले गए। 3 महीना वहां रहे और राज्यसभा जाने के तीसरे महीने से उन्होंने दल विरोधी काम शुरू कर दिया। फिर चले गए। फिर इस बार 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 आग्रह कर रहे थे, जो हम लोग की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय वशिष्ठ बाबू के यहाँ हर हफ्ते ही जाते थे, ये आग्रह के साथ ही हमको ले लीजिए। फिर मुख्यमंत्री जी ने ले ली। इस पार्टी में एक आदमी उनके पक्ष में नहीं था, ये भी बता देते। इस पार्टी के अंदर जो उनका पुराना इतिहास था, उस पुराने इतिहास को देखते हुए इस पार्टी के जो भी नेता थे, एक नेता इस पक्ष में नहीं थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में शामिल किया। फिर भी सबके उसको करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपना निर्णय दिया कि हमने फैसला कर लिया है वो ज्वाइन कर। सब लोगों ने स्वीकार कर लिया ज्वाइन कर। उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका विरोध तो यहाँ तक था कि उनके ज्वाइनिंग में नहीं आए। हम लोगों ने कहा भी कि चलिए, मैंने खुद जाके उनसे कहा राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप लोग को ज्वाइन कराना है करेंगे। लेकिन फिर वो नई पार्टी बना रहे हैं, हम लोग की शुभकामना है, फलिए फूलिए। लेकिन जब आदमी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अति तीव्र हो जाता है, अति महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति हो जाता है, तो उसका व्यक्तित्व
मिलिन हो जाता है, वो मध्यम हो जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षा है, यही कारण है उनके आज तक के राजनीतिक इतिहास में। कौन भरोसा करेगा? कोई भरोसा नहीं करेगा। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी उनको कल देख लीजिएगा कुछ दिन के बाद, आज हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा कि उनका वहाँ क्या हुआ। एनडीए से बाहर निकले थे, तो एनडीए से जब बाहर निकले थे तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में गए थे, तो वहाँ से भी निकल के चले आए, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बनाया। बहुजन समाज पार्टी और जो कौन है उनकी ओवैसी जी की पार्टी MIM के साथ मिलकर गठबंधन बनाया, और उसमें घोषित करवाए कि उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो उस जगह से वो अपने आप को नीचे उतार ही नहीं पाए। वो अपने आप खुद से दिमाग में एक अपने लिए स्थान वो बना चुके, और उस स्थान से नीचे नहीं आए। लेकिन फिर भी आप चले गए हैं, नई पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हम सब लोगों की शुभकामना है, आप जाइए, क्योंकि हम लोग जान रहे थे पिछले दिसंबर से जो उनका काम चल रहा था, और जो बार बार दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, दिल्ली से पटना आ रहे थे, पटना से दिल्ली जा रहे थे, किससे किससे मिल रहे थे, कहाँ कहाँ खिचड़ी पका रहे थे, सब हम लोग को जानकारी थी। ऐसा नहीं है, एक भी बात छुपता थोड़ी है, एक भी बात छुपता नहीं है। सब बात की जानकारी हम लोग को हो रही थी, तो इसलिए हम लोग जान रहे थे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो जा रहे थे तो जाइए, इसीलिए हमने कल कहा था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। निगाह था उनका दिल्ली और पटना की यात्रा पर, और निशाना साध रहे थे कि जनता दल यू कमजोर हो रहा है। अरे भैया, जनता दल यू का सदस्यता अभियान चला, 72 लाख सदस्य बने, आप बहुत जनता दल यू को मजबूत करने का दावा करते हैं, खोखला दावा करते हैं। कै गो मेंबर बनवाए थे, उसमें तो थे आप पार्टी में। कितने सदस्यता अभियान में आपका योगदान रहा? नहीं रहा। और एक बात और आपको बता देता कि जब हम लोग को मालूम हुआ कि वो दिल्ली और पटना की यात्रा कर रहे हैं, तो इस बीच जो उनका कुनबा है, उस कुनबा के कई महत्वपूर्ण साथी लगातार हम लोगों से आके मिलते रहे, और उन्होंने कहा कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते ये किसी जगह नहीं टिकते हैं, अब हम लोग कहीं इनके साथ जाने वाले नहीं। उसी में एक धीरज कुशवाहा जी यहाँ है बगल में, ये भी थे, उनका सब करता धरता ही थे। और भी कई लोग हैं, धीरे धीरे एक दिन सब लोगों को बुलाएंगे, तब आप लोगों से मिलाएंगे कि उनके कुनबे के कितने महत्वपूर्ण लोग आज चले आए वापस। तो यही हम लोगों को बताना था कि वो जाए, पार्टी बना रहे हैं बनाएं, लेकिन जहाँ जाए तो वहाँ कम से कम कुछ दिन टिके रहे। टिक नहीं सकते, आप पूरा इतिहास निकाल के देखिए। वो विधायक बने पहली बार, तब से आज तक का उनका इतिहास निकाल के देख लीजिए, वो कहीं नहीं टिके, इसलिए टिकेंगे कहीं नहीं। और उनकी सबसे बड़ा जो उनके व्यक्तित्व का जो खामी है, वो उनका अति महत्वाकांक्षी होना। वो बार बार कहते हैं कि उनके जो अगल बगल लोग रहते हैं, वो आप पर अगल बगल जो लोग रहते हैं, उनके सुझाव से सीएम चलते हैं, जिसके चलते पार्टी बर्बाद हो रही है। वो अगल बगल के लोग मेरे साथ अगर यही बात हो, इस पार्टी में एक नेता का नाम बताए हो जो उनको पार्टी ज्वाइन कराने के पक्ष में था? कोई नहीं, एक पार्टी का नेता नहीं था। अगर मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर ही चलते तो बाकी तो सबकी राय थी कि उनको नहीं ज्वाइन कराना चाहिए, लेकिन सबकी राय के विपरीत मुख्यमंत्री जी ने उनको पार्टी में ज्वाइन करवाया। मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा खासियत आज से नहीं, प्रारंभ से ये रहा है, सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की।
आखिर इतना प्रेम नीतीश कुमार का उपेंद्र कुशवाहा के प्रति क्यों है? 3 बार वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अरे पार्टी के साथी रहे हैं, कोई भी साथी है, आप ही चले आइएगा, किस चैनल में आ जाए छोड़ के चले जाइएगा, दोबारा जाइएगा तो आपको ले लेगा कि नहीं ले लेगा? अरे रहता है आदमी इतना दिन तो। और आके एक बात बता देते हैं, इस समय यहाँ ज्वाइनिंग के समय भी और उसके बाद भी उनका रिकॉर्ड, आप अगर पुराना भाषण उनका गूगल में निकालिएगा पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जीना यही है, मरना यही है, कुछ नहीं चाहिए, सब बात उन्होंने यही कहा इसी हॉल में। तो सब रिकॉर्ड है उनका। और आज क्या बोल रहे हैं? उनका कहना है कि आप लोगों ने आरजेडी के सामने गिरवी रख दिया। अच्छा, अरवल के जब वो एनडीए से बाहर आ रहे थे तो अरवल के सर्किट हाउस में किससे जाके मिले थे? किससे जाके मिले थे? तेजस्वी यादव जी से जाके मिले थे। और बीच में जब एनडीए से बाहर निकले थे तो गठबंधन के लिए आरजेडी के साथ घूम रहे थे। उसमें बहुत तेजस्वी यादव जी ठीक थे, उस समय लालू यादव जी बहुत ठीक थे। तो अपनी महत्वाकांक्षा को आगे करके जब सोचेगा तो ही सब होगा ना। वो गए थे कि नहीं अरवल में? रिकॉर्ड में है ना। वो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे ना। लेकिन हम लोगों ने सुना, सच्चाई क्या है तो उपेंद्र जी बताएं। हम लोगों ने जो उस समय सुना कि उन्होंने कहा कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, तेजस्वी जी ने कहा कि आपको क्या के लिए मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, तो वहाँ से निकल गए। तो बहुजन समाज पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, तो वहाँ से उस गठबंधन से लड़ गए। कौन सा कर्पूरी ठाकुर की लेगेसी को आगे ले जाना चाहते हैं? आज तक अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उपेंद्र कुशवाहा जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के किस लेगेसी को आगे बढ़ाया? कोई लेगेसी को नहीं। हाँ, नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के लेगेसी को आगे बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मुझको भी सौभाग्य रहा है काम करने का, उनके जीवन के अंतिम क्षण तक। कर्पूरी ठाकुर जी ये चाहते थे कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको न्याय मिले। किसने न्याय दिया? नीतीश कुमार जी ने। 2005 में वो मुख्यमंत्री बने, 2006 में उन्होंने न्याय दिया। उस वर्ग के साथ किस लीगेसी की बात कर रहे हैं? वो अपनी लीगेसी की बात करें, वो ज्यादा बेहतर है। काहे का नुकसान होगा? इसके पहले नहीं गए क्या होगा? इसके पहले गए हैं कि नहीं? कितना नुकसान होगा? 2015 के चुनाव में कहाँ थे? विधानसभा के चुनाव में 2010 के विधानसभा के चुनाव में कहाँ थे? उत्तराधिकारी तो उसी के घर में तलाश रहे, इस पर क्या कहें? तो उनको अगर उत्तराधिकारी एक नहीं करते तो हमको उत्तराधिकारी बनाइए। अरे उत्तराधिकारी कहाँ? अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप लोग तो पड़ोसी के घर में खोज रहे थे अपना नेता। और वो जब पड़ोसी के घर में गए थे अपने को मुख्यमंत्री घोषित करवाने के लिए, तो उस समय उनको अरवल के सर्किट हाउस में तब क्या पता लगा था? पता नहीं, समय बता देगा। रामचंद्र बाबू भी बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। ये पार्टी, इस पार्टी को कोई नहीं जानता। इस पार्टी के पहले भी 2 बार वो गए हैं। कितने लोग उनके साथ गए हैं ये तो वो अपना आकलन कर लेंगे। वो जाएंगे, वो पहले भी उन्हीं के साथ बीच में आए थे रामेश्वर महतो जी। और रामेश्वर महतो जी जब बीच में उनके पहले ज्वाइन कर दिए, उस समय उनके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था आके पार्टी में, ये हम बताएं क्या? ये बताना व्यक्तिगत हो, इसलिए हम नहीं बताएंगे। रामेश्वर महतो जी आके क्या क्या बोले थे उपेंद्र जी के बारे में, ये हम लोग को मालूम है। और डील के अंदर डील के बारे में बता दीजिए, क्या डील? वो बार-बार कह रहे थे कि जो डील हुई है आरजेडी के साथ, तो आपका नाम तो उन्हें बतावेंगे, उन्हें बतावेंगे कि वो क्या डील समझ रहे हैं और क्या डील वो चाहते थे। उन्होंने कहा है कि आपने कहा था कि आरजेडी के साथ जाके मर्जर
कर देना है, डील के बारे में आप ही बताएं। हमने कहा था कभी? हम तो अरे उनको छोड़िए ना, उनके क्या कहते हैं। हमने सब दिन कहा और आज भी कह रहे हैं कि जनता दल यू का अस्तित्व है, जनता दल यू का अस्तित्व रहेगा, जनता दल यू किसी पार्टी में विलय नहीं करेगी। अरे तो वो गए थे, जंगल राज किसको कहते हैं? मंगल राज किसको कहते हैं? दिल्ली में मंगल राज है ना अभी भाई। अभी महागठबंधन की सरकार तो अगस्त से चल रही है, कौन सा जंगल राज है? इससे ज्यादा अपराध दिल्ली में हो रहे हैं। दिल्ली में किसका कानून व्यवस्था पर नियंत्रण है? पार्टी का कमजोर होगी? वो पहले भी 2 बार जा चुके हैं, आ चुके हैं। अब आते हैं, आप भी आ जाइएगा, हम लोगों से गले मिलेगा तो हम कहेंगे ना कि मनीष जी के आने से जो लोकतंत्र है और जो चौथा स्तंभ है वो बहुत मजबूत हुआ है, तो कहेंगे। चार लोगों का नाम ले रहे हैं, बार-बार वो 4 लोगों का शुरू से नाम लेते रहे, 4 लोग मुख्यमंत्री को बताते हैं, समझाते हैं। अरे भाई आपको तो बता दिए तो समझे नहीं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को इस पार्टी में फिर से वापस लिया जाए। इस पक्ष में पार्टी का एक भी नेता नहीं था, एक भी नेता नहीं था। लेकिन जब उनको ज्वाइन कराने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया, मुझको भी उन्होंने बुलाया था, उपेंद्र कुशवाहा जी सामने बैठे हुए। हमने कहा था उस समय, 1 मिनट, हमने कहा था उस समय भी मुख्यमंत्री जी को, इनसे पूछ लीजिए ना कै दिन टिकेंगे पटिया में। हमने उस समय भी कहा था मुख्यमंत्री जी को, उपेंद्र जी के सामने, कि इनसे ये ना पूछ लीजिए कि पार्टी में कितना दिन रहेंगे, तो कहे कि अब जीना मरना सब यही है, अब कहाँ जाएंगे, थक गए हैं। हम लोगों ने कहा कि जब थक गए हैं तो इनको आराम करने के लिए जगह दे दीजिए। 25 में मुख्यमंत्री कौन कहा है कि आप कह रहे हैं कि पार्टी अस्तित्व में रहे, विपक्षी एकता के लिए बहाल करने के लिए कहा है, तो क्या जदयू ने कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है? या अभी आपको पहल करने के लिए कहने का मतलब है नेतृत्व स्वीकार करना? ये किसने आपको समझा दिया? अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी अस्तित्व में रहेंगे, कौन होगा? आप कह रहे हैं कि मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। तो हम बोले हैं क्या? हम बोले हैं क्या? कहाँ पे नहीं? तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। चाहे स्थिति में है, पार्टी में स्थिति में रहेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल स्थिति में नहीं है। अरे जब आपका सवाल है, आज भी राष्ट्रीय जनता दल स्थिति में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है, अभी 24 का बात करिए ना। अरे अभी 24 का बात करिए ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका कोई एजेंडा, माले का एजेंडा या नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, हमसे पूछ रहे हैं। पार्टी का अध्यक्ष उसके लिए सक्षम व्यक्ति है क्या? आज हमने संघ प्रमुख श्री भागवत जी के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें पूरे देश को उपदेश दे रहे हैं कि जातिवाद खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। हमने केवल इतना निवेदन किया है, श्री भागवत जी यदि सही मायने में जाति व्यवस्था बंद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो यह जहां से पैदा हुआ है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जिसकी जननी मनुस्मृति है, मनुस्मृति की तरह तमाम अन्य ग्रंथ और साहित्य हैं, पहले उनको प्रतिबंधित करिए, तब जाति व्यवस्था खत्म होगी। अन्यथा इसकी जननी मनुस्मृति तथा अन्य ग्रंथ अगर मौजूद रहेंगे
तो कभी भी जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। ये धर्म के विषय को लेकर के समाजवादी पार्टी ने कहा कि चर्चा नहीं की जाएगी, सदन में उठेगा कैसा? हमने तो धर्म की कोई बात ही नहीं किया, तो इसलिए धर्म कहां से आपको आ गया? धर्म का सपना देखते रहते। धार्मिक विषयों से परहेज करने की बात कही गई। अरे भाई, भागवत जी ने अगर जाति व्यवस्था खत्म करने की बात की है तो ये उपदेश किसको दे रहे हैं? वो तो जानते हैं कि वर्ण और जाति भगवान ने नहीं पैदा किया, उनका खुद बयान है, उन्होंने खुद कहा इस व्यवस्था को पंडितों ने बनाई है। तो जो बनाई व्यवस्था है, जहां से वर्ण व्यवस्था चली है, जहां से जाति व्यवस्था पैदा हुई है, उस मनुस्मृति को और साथ ही साथ अन्य और भी साहित्य व ग्रंथ जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के पोषक हैं, उसको प्रतिबंधित करे, तब जाति व्यवस्था खत्म हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव आपकी मुद्दे से सहमत नहीं है। इसमें जैसा मैंने कहा, अधिकतर केंद्र सरकार के घरों के निर्माण के लिए तोड़ने, सड़क बनाने के लिए या फ्लाईओवर के लिए तोड़ने, मैंने इनमें से एक एक स्ट्रक्चर का अध्ययन किया, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं ये मसले सारे। मैंने एक एक मंदिर का, मजार का, गुरुद्वारे का एक एक का अध्ययन किया, कराया, और मैंने देखा कि ये जो 67 मंदिर तोड़े जाने हैं, 6 मजार तोड़ी जानी है और एक गुरुद्वारा तोड़ा जाना है, उसके प्रभाव का भी मैंने आकलन किया, समाज में क्या कर रहा है। मैंने पुलिस की रिपोर्ट्स भी पढ़ी जो अफसरों ने लगा के भेजी। एक रिलीजियस कमेटी है ऑफिसर्स की, उसको भी मैंने, उसकी रिकमेंडेशंस को भी पढ़ा। उसने तो सभी को रिकमेंड किया है तोड़ने के लिए, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट लगभग सभी में यह है कि इन मंदिरों को, मज़ारों को, गुरुद्वारों को लोग यूज़ करते हैं, और कई जगह सैकड़ों तो कई जगह हज़ारों लोग आते हैं, और हर एक में, ऑलमोस्ट हर एक केस में ये कहा गया है पुलिस की ओर से कि हमारी लोकल रिपोर्ट्स बताती है कि यहाँ अगर इसको हम तोड़ते हैं तो यहाँ लोगों का विरोध होगा, दंगे भी हो सकते हैं, पत्थर भी चल सकते हैं, भड़क भी सकते हैं लोग, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। हर एक में लगभग पुलिस ने लिखा है। लेकिन उसके बावजूद अगर हमें कहा जाएगा तो हम एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करेंगे, हम फोर्स प्रोवाइड करा के इस काम को करने में मदद करेंगे। पुलिस के तो यही कमेंट्स हैं। और इसमें 90 साल से लेके 40-50 साल पुराने भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो मैंने इन सब का अध्ययन किया है, एक एक प्रोजेक्ट का। मैं उनमें से कुछ मुख्य चीज़ों को आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि कौन सी चीज़ें एलजी साहब तोड़वाना चाहते हैं। एक बांके बिहारी सनातन मंदिर है झील चौक पे, 1948 से बना हुआ है ये मंदिर। यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, करीब 1500 लोग तो फेस्टिव डेज पे आते हैं और सैकड़ों लोग रोज़ाना इस मंदिर में आते हैं। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि पुलिस has reported that the demolition would be strongly opposed by local leaders, citizens, possibly lead to serious breach of law and order, including road blockage, damage of government property and stone pelting, etc. ये पुलिस ने अपना आकलन करके दिया है। 1948 से बना हुआ मंदिर है। इसी तरह से शिवपुरी में शिव शक्ति मंदिर है लेबर चौक पे, 1995 से बना हुआ मंदिर है। उसके बारे में भी पुलिस रिपोर्ट यही कहती है कि यहाँ लोग आते हैं और लोकल्स में स्ट्रांगली अपोज। इसी तरह से प्राचीन शिव मंदिर है इन फ्रंट ऑफ मार्बल मार्केट नियर मायापुरी, यहाँ भी सैकड़ों लोग रोज आते हैं। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि ये स्ट्रांगली अपोज होगा यहाँ पे। फिर वजीराबाद रोड पे 2 टेम्पल हैं, एक हनुमान टेम्पल है और एक दोनों अलग अलग हनुमान टेम्पल हैं। एक खजूरी चौक के पास में है और दूसरा लोनी। देखिए, यहाँ लगातार सदन में जो बातें कही जाती हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी ने किसानों के लिए कहा कि आय दोगुनी होगी। 2022 आ गया है और 23 शुरू हो गया। क्या भाजपा ये बताएगी कि आय किसानों की दोगुनी हो गई? और आप में से सब लोगों को याद होगा कि एक बार यहाँ कुछ अधिकारियों ने बिजली विभाग का सरकारी कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड को
प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था और वो प्राइवेट कंपनी फेल हो गई। उसके बाद इस सरकार ने कार्रवाई की थी और उन लोगों को जेल भेज दिया था। आज देश के सामने सबसे बड़े उद्योगपति वो SBI और LIC का पैसा डुबा चुके हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से जेल भेजा था, क्या दिल्ली की सरकार SBI और LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी कि नहीं भेजेगी? और अगर उद्योगपति दिल्ली के डूबे हैं तो उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। अगर उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन से जोड़ रहे हैं और इतना बड़ा सपना दिखा रहे हैं कि लगभग 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, पहले तो ये बताएं, सामान्य विधायक की जो निधि का सदन में कहा गया कि उनकी निधि बढ़ा दी जाएगी, जो सरकार विधायकों की निधि न बढ़ाती हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि 40 लाख करोड़ से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आने का जो सपना देख रहे हैं वो कैसे पूरा होगा? अध्यक्ष जी, सरकार के मंत्री हैं राकेश सचान, 72 प्लॉट उनके नाम थे। अब वो कह रहे हैं कि उन प्लॉटों को वापस कर देंगे और बीजेपी कह रही है कि आपके शासनकाल में उनको अलॉट किया था। देखिए, अगर पिछली सरकार के समय पर आवंटन हुआ है तो पिछली सरकार के जिन अधिकारियों ने कानून और नियमों का पालन नहीं किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने इस तरह से किए हैं और जिन्होंने पाए हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जाति जनगणना के पक्ष में है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी इस बात को लगातार उठाती रहेगी। सर, बिहार में जाति जनगणना हो रही है, मगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष की वजह से जाति जनगणना नहीं हो पा रही। एक बार केशव जी ने कहा था कि हम चाहते, लेकिन पलट गए उसके बाद। देखिए, ये जिन मंत्री का नाम ले रहे हो उनको कौन पूछता है? उन्हें पूछता कौन है? वो क्योंकि किसी की नौकरी कर रहे हैं। आप नौकरी करने की बात समझिए, जिसको फैसला लेना है वो सामने क्यों नहीं आ रहे? मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हम जाति जनगणना नहीं कर सकते हैं, उनको आगे सामने कहना चाहिए। क्या हमने असिस्टेंट मंत्रियों को सामने भेज देते हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आय दोगुनी होगी किसानों की। मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी होगी। आलू का किसान बर्बाद हो गया, खाद महंगी है, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं, बिजली महंगी है, बिजली दे नहीं पा रहे हैं, सिंचाई का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार किसान की आय दोगुनी कहाँ से हो गई? और फिर अगर आपको पैकेज्ड आटा मिलेगा, क्या ये सरकार से खरीदा हुए गेहूं का आटा खा रहे हैं आप? जो आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, क्या सरकार का उसमें देन है? क्या किसके हाथ में दे दिया आपने? आपको अगर आटा खाना होगा तो हो सकता है प्राइवेट कंपनियों का आटा खाना पड़े, रिफाइंड तेल अगर खाना पड़े तो प्राइवेट लोगों का खाना पड़ेगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट करके प्राइवेट हाथों में जा रही है, और प्राइवेट हाथ कंट्रोल करेंगे, प्राइवेट उद्योगपति कंट्रोल करेंगे कि आप कौन सा आटा खाएं, कौन सा रिफाइंड तेल खाएं, कौन सा घी मिलेगा आपको। ये कंट्रोल प्राइवेट लोगों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी दे रही है। सरकार कह रही है कि राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और राम राज्य। देखिए, राम राज्य का मतलब ये नहीं कि बुलडोजर से आप माँ बेटी को मार दें। क्या राम राज्य का यही सपना है कि माँ बेटी बुलडोजर से मार दी जाएंगी, जला दी जाएंगी? क्या यही राम राज्य है? अगर ये राम राज्य है तो मैं कहता हूँ 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जो सपना दिखाए, 1 रुपया करोड़ नामांकन के साथ प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 75 लाख नामांकन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को रुपया 10,000, 20,000 एवं 50,000 क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय ब्याज अनुदान आधारित ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत कुल ऋण वितरण में प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में निर्गत GST पंजीयन की कुल संख्या 28.03 लाख हो गई है, जो कि देश में सर्वाधिक है। मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष में 2022-23 में प्रदेश में अब तक 26.29 करोड़ मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महिलाओं के प्रति अपराध एवं बाल अपराध संबंधी गंभीर मुकदमों हेतु विशेष न्यायालय में विशेष लोकपालों की नियुक्ति करके प्रभावी प्रयत्न सुनिश्चित की जा रही है, जिससे महिलाओं के प्रति अपराध में 59.1% सजा की दर प्राप्त की गई है, जो कि देश में सर्वाधिक एवं राष्ट्रीय औसत के 2 गुने से भी अधिक है। राष्ट्रीय तृतीय
तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है, जिसका देश के सकल दुग्ध उत्पादन में योगदान लगभग 100% है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गन्ना, आलू, सब्जियां, फलों एवं एथेनॉल के उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 52.77 लाख आवास स्वीकृत हुए तथा गरीबों के लिए आवास बनाने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि इनमें से 39.66 लाख आवास पूर्ण भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास निर्माण की संख्या एवं ग्रामीण आवास निर्माण की पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य सुधारों को जन सामान्य विशेषकर समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचने के उद्देश्य से मेरी सरकार 2 फरवरी 2020 से प्रत्येक सप्ताह प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य। तो यूपी विधानसभा की कार्यवाही आप देख रहे थे। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन सदन में लगातार हंगामा जारी रहा। समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। अभिभाषण के दौरान विपक्ष की नारेबाजी सुनने को मिली। रुक करेंगे मेरे सहयोगी अशोक तिवारी का। अशोक, बजट सत्र शुरू हो गया है यूपी का, और ऐसे में हंगामेदार रहने के आसार पहले दिन से ही नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कल ही जब समाजवादी पार्टी या दूसरे विपक्षी दलों ने अपने विधायकों के साथ बैठक की थी, तो उस दौरान भी इस बात के संकेत दिए गए थे कि विधानसभा सत्र का जो पहला दिन होगा वो बेहद हंगामेदार होने वाला है। आज भी देखिए कि जब सुबह विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, उसके ठीक 1 घंटा पहले समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक जो विधानसभा में जो मेन एंट्री गेट है, जो पोर्टिको है, वहां पर धरने पर बैठ गए थे। और उसके बाद काफी मशक्कत के बाद वो तमाम सारे विधायक वहां से उठे और उसके बाद सीधे समाजवादी पार्टी का जो विधानमंडल दल कार्यालय है वहां पर पहुंचे थे। अभी ठीक 11 बजे जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू की गई, राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया, ठीक वैसे ही तमाम सारे जो विपक्षी दल के जो विधायक हैं उन्होंने राज्यपाल के वापस जाओ के नारेबाजी शुरू कर दी है। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर विधानसभा के भीतर की कार्रवाई साफ तौर पर नजर भी आ रही होगी। तो ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग मुद्दों को लेकर जो बात सदन के भीतर, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या दूसरे विपक्षी दल हो, उनकी तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर बीते दिनों देखने को मिलता था, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो या रोजगार हो, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष प्रमुखता से आज सदन के भीतर उठा रहा है। और इस बात के संकेत साफ मिल रहे हैं कि आज सदन की कार्रवाई का पहला दिन है। आमतौर पर जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष का हंगामा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार तस्वीर जो है वो थोड़ी ज्यादा हंगामेदार देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूती के साथ सदन के भीतर अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा है। तो फिलहाल सदन के भीतर राज्यपाल का अभिभाषण लगातार जारी है और अभिभाषण के दौरान जो विपक्ष है उसका हंगामा भी लगातार जारी है। राज्यपाल वापस जाओ के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और तमाम सारे मुद्दों को लेकर जो चाहे समाजवादी पार्टी के विधायक हो या दूसरे विधायक हो, वो अपने हाथों में जो छोटे छोटे बैनर हैं, जो पोस्टर्स हैं, उनको लेकर अपना विरोध प्रदर्शन विधानसभा के भीतर दर्ज करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये भी देखने को मिल रहा है अशोक की जो पूरी रणनीति है उसमें शिवपाल यादव अगुवाई करते हुए दिख रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार के बजट सत्र में किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरेगी? देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और आप जानते हैं कि अखिलेश यादव ने बतौर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में सदन के भीतर और सदन के बाहर पिछली बार मजबूत उपस्थिति पार्टी की तरफ से दर्ज करवाई थी। तो आज चूंकि सदन की कार्रवाई का पहला दिन है और कल जब समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई थी तो उस दौरान भी शिवपाल यादव पहली बार समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद औपचारिक तौर पर विधायकों की बैठक में शामिल हुए थे। अखिलेश यादव के साथ उन्होंने विधायकों की बैठक को संबोधित भी किया था। तो कल भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि अलग अलग मुद्दों को लेकर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से सदन से लेकर सड़क तक अपनी आंदोलन की रणनीति के तहत काम करना होगा, ताकि जनता के बीच में ये मैसेज दिया जा सके कि बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत विपक्षी दल कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। और अब हम से सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। 11 बजे संवेद सदन को माननीय राज्यपाल महोदय का महत्वपूर्ण अभिभाषण सुनने का अवसर प्राप्त होगा और इसके साथ ही देश के सबसे बड़े विधानमंडल के बजट सत्र की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। यह बजट सत्र है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रारंभ होकर के
22 को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए सदन में बजट प्रस्तुत होगा। इसके उपरांत अभिभाषण पे और बजट पे दोनों सदनों में चर्चा होने के उपरांत इन्हें पारित किया जाएगा। अन्य विधायी कार्य संपन्न होने हैं। माननीय विधायकों के द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को भी सदन के पटल पर रखने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर प्राप्त होगा। लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी है विधायिका, और अपने उस स्तंभ के रूप में हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से, सकारात्मक ढंग से सदन के पटल में रखें। ये उनका अधिकार है और सरकार का दायित्व है कि वह माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को न केवल सदन के सम्मुख आए हुए उन मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा को, बल्कि उसका उचित जवाब भी वहां पर दें। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है और हर एक मुद्दे का जवाब भी देने को तैयार है। और मेरी अपील होगी कि प्रदेश की जनता जनार्दन ने जिस भाव के साथ माननीय जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजा है, उन भावनाओं के अनुरूप आचरण करते हुए हम सदन की कार्रवाई को शानदार तरीके से चला करके राज्य विधानमंडलों में उत्तर प्रदेश विधानमंडल अपने एक नजीर प्रस्तुत करे, यह एक अवसर हमारे पास है। अभी सत्र की कार्रवाई 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। अगर कोई तिथि ऐसा लगता है कि इसमें है, तो उस दौरान हम लोग शनिवार के दिन भी कार्य दिवस को लेने के बारे में गंभीरतापूर्वक सभी दलीय नेताओं के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय इस कार्यक्रम को और उस एजेंडे को उस रूप में तैयार करेंगे और अच्छी बहस का एक मंच हम बनाएं। हमारा सदैव से मानना रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों लोकतंत्र की महत्वपूर्ण धुरी है और इस महत्वपूर्ण धुरी में दोनों को मिलकर के जनता जनार्दन ने जो दायित्व जिसको सौंपा है उसके अनुरूप दोनों अपने दायित्वों का निर्वहन करें। असहमति हो सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष भी कभी किसी मुद्दे से चर्चा से भाग नहीं सकता। अगर वो प्रदेश के हित में है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें, यह न लोकतंत्र के हित में है और न ही यह प्रदेश के हित में है। हमें जो भी बात रखनी है शालीनता के साथ, प्रभावी शब्दावली में
सदन के सम्मुख अगर रखते हैं तो हमारी बात भी जनता जनार्दन के पास पहुंचेगी और सरकार भी अपने पक्ष को वहां पर उसी प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रयास करेगी। मैं सभी माननीय सदस्यों का आज बजट सत्र प्रारंभ होने पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ ही प्रारंभ हो रहे बजट सत्र में हर एक माननीय जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन और लोकतंत्र की भावनाओं को सम्मान करते हुए सदन की कार्रवाई को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना सार्थक और सकारात्मक योगदान देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के सबसे बड़े विधानमंडल की कार्रवाई अन्यों के लिए एक हमारा मकसद बहुत साफ है। देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमान से बचाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को संशोधित करने या प्रतिबंधित करने की हमने मांग की है। संबंधित पत्र मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री को भी दिया है। रही बात, अगर कोई इस बात को लेकर के कि महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान न दिया जाए, अगर इसको लेके कोई हमारा सिर काटने की बात करता है, जीभ काटने की बात करता है, हाथ काटने की बात करता है, नाक कान काटने की बात करता है, तो ये उसकी सोच की बलिहारी है। ऐसा लगता है इन लोगों के बयान से कि ये धर्म की आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। मैंने तो कुछ चौपाइयों के इंगित करते हुए मात्र इतना ही कहा था कि इससे इन हिस्सों से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और देश की महिलाओं का अपमान हो रहा है। इनकी संख्या 97% है। 97% लोगों की भावनाएं रोज आहत होती हैं। तो तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को इन 97% लोगों की भावनाएं ध्यान में नहीं आती हैं। उनकी 2-3% लोगों की भावनाएं बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं मौर्य जी धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। हमने तो धर्म पर कोई बात ही नहीं किया। और रही बात, क्या महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही इनका धर्म है? अगर इनका धर्म है उनको अपमानित करना, तो मेरा धर्म है इनको सम्मान दिलाना। आपके ऊपर कल जब नारेबाजी में देखिए, वहां जो नारेबाजी करने वाले लोग थे, उनका नारा जय श्री राम का चल रहा था। तो ये नारा कौन लगाता है? आप जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे ही ऐसी नारे लगाते हैं। तो वो लोग क्या कहा, किसके थे? और अब चूंकि उनके हाथ में माला था, माला के अंदर वो क्या लिए थे, झंडा लिए थे या स्याही लिए थे, अब वो जाने। हमारे गाड़ी की ओर दौड़े, स्थानीय पुलिस ने उनको घेर करके वापस कर दिया। चल पाया कौन लोग थे वो? अब चूंकि मैं तो सोनभद्र जा रहा था, रास्ते में थे, कौन थे कौन नहीं थे, अब उनका मैं नाम और गांव थोड़ा पूछने के लिए रुक जाऊंगा। अब इतना छोटा हरकत के लिए मैं अपना अभियान थोड़ा रोक दूंगा। आप समाजवादी पार्टी में देखा गया था कि कुछ लोगों ने इससे पहले भी आपके बयान की आलोचना करी थी। अब उसी क्रम में एक मंच पे कार्यक्रम में राकेश प्रताप सिंह जो कि विधायक हैं, उन्होंने भी आपके बयान पे और उस पर कहा कि मेरी विधायकी रहे या ना रहे, पद रहे या ना रहे, लेकिन मैं इस तरह का किसी भी मतलब धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ ये कुछ भी सुन नहीं सकता हूँ। अब वो मेरे बयान को अगर सही ढंग से सुनेंगे तो शायद अपने बयान में संशोधन कर लेंगे। एक सवाल और है, राष्ट्रपति लखनऊ में थी,
बीच में कहा गया कि लखनऊ का नाम बदल के लक्ष्मणपुरी होना चाहिए। काफ़ी लखनऊ में लक्ष्मण जी की मूर्ति भी स्थापित करी गई, कई लोगों ने इसकी मांग करी। राष्ट्रपति जी ने भी इस मामले पे कहा है। देखिए, ये लखनऊ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है। यहाँ से सांसद रहे हैं, यहाँ से सांसद होकर देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। प्रधानमंत्री के रूप में भी उनका भाषण लखनऊ में मैंने सुना है। वो प्रायः जब भी लखनऊ में आते थे कहते थे लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है। आज उनके न रहने के बाद इसके मायने बदल कैसे गए? नाम बदलने वाले लोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहीं न कहीं सपनों और अरमानों का गला घोट रहे हैं। और दूसरी ओर लखनऊ की पहचान पूरी दुनिया में लखनऊ से ही है। नाम बदल देने से कोई और चार चांद नहीं लग जाएगा। और फिर अगर नाम बदलने की कोई आवश्यकता ही है तो राजा लाखन पासी यहाँ के राजा थे, लखनऊ उनकी राजधानी थी। उन्हीं के नाम पर कभी ये लखनपुर कहा जाता था, फिर बाद में लखनावती हुआ, लखनावती से लखनऊ हुआ। तो अगर नाम बदलना ही है तो राजा लाखन पासी के नाम पर क्यों नहीं? एक आखिरी सवाल है। कल मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली में एक अधिवेशन के दौरान कहा कि राम ओम और अल्लाह एक हैं, और जब श्री राम को लोग नहीं पूछते थे तो उससे पहले भी ओम का अस्तित्व था और ओम और अल्लाह एक चीज़ है, उन्होंने कहा है। अब देखिए, इसकी व्याख्या हमारे ख्याल में जितना अच्छा मदनी जी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ सोच समझ के इतिहास खोज के बोले होंगे। समर्थन मिला, उस विरासत को संभालने की जवाबदेही उनके ऊपर आई। जनता ने उसके अनुकूल उनको ताकत भी दी, सत्ता में आए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शुरुआती दौर में तो निश्चित रूप से लालू जी ने भी जनता की भावना का ख्याल रखा और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो विरासत उनके हाथ में गई थी उसके अनुरूप कुछ कदम उठाए। लेकिन बाद के दिनों में उनमें भटकाव आ गया। जितना बड़ा समर्थन उनको जनता का मिला था, उस समर्थन का इस्तेमाल दो तरीके से किया जा सकता था। एक, उस समर्थन से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल जनता के लिए हो सकता था। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़कर एक समरस समाज बनाने की परिकल्पना जो समाजवादियों ने कभी की, उसी परिकल्पना को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आगे ले जाना चाहते थे। यही उनकी विरासत थी और यही अपेक्षा लालू जी से भी थी कि लालू जी इसी रूप में जनता से जो ताकत उनको मिली है, आशीर्वाद मिला है, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाद में चलकर भटकाव उनके अंदर आ गया। अब इस समर्थन का इस्तेमाल उस रूप में नहीं करके, उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हुए, शुरुआती दिनों को छोड़कर बाद के दिनों में लालू जी ने अपने परिवार के हित में काम करना शुरू कर दिया, जिसका खामियाजा उनको अभी तक भुगतना भी पड़ रहा है। खैर, वह विषय अलग है। लेकिन वहाँ से फिर नीतीश कुमार जी के ऊपर उस विरासत को चलाने की जवाबदेही बिहार की जनता ने सौंपी। 2005 के पहले 10-12 साल तक संघर्ष हुआ। 1994 में समता पार्टी बनी। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी उस पार्टी के बिहार में मुखिया बने और फिर संघर्ष का दौर चल पड़ा। उस वक्त जो बिहार चल रहा था, जल रहा था बिहार, झुलस रहा था बिहार, जनता तंग थी, तबाह थी, परेशान थी। उस स्थिति से बिहार को बाहर लाने के लिए
10-12 वर्षों तक संघर्ष चला नीतीश जी के नेतृत्व में, और तब बिहार के लोगों ने नीतीश जी को आशीर्वाद दिया, नीतीश जी को ताकत दी। हम सब लोग भी उनके साथ संघर्ष के दौर में रहे। अब 2005 के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की वही विरासत नीतीश जी के जिम्मे आ गई। नीतीश जी ने उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम अपने शासन काल के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इस बात के लिए मैं नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर लगाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बिहार बाहर आया, हर तरह से लोगों के बीच अमन चैन शांति कायम हुई, बिहार डेवलपमेंट की ओर बढ़ चला। तो बहुत ही अच्छा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन जो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और अंत में अगर भला नहीं तो कुछ नहीं भला, तो बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन बाद में अंत में आकर अंत भला तो सब भला नहीं हुआ, अंत बुरा हो गया। नतीजा कहावत दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, अंत बुरा तो सब बुरा। बहुत अच्छा नीतीश जी ने किया, लेकिन अंत में आज जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है, न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, पार्टी के साथियों के लिए, सब के लिए। दो 2020 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उस वक्त हम उनके साथ फिर से चुनाव के बाद उनके साथ आ गए, क्योंकि उस वक्त बिहार की जनता का जो आदेश मिला था नीतीश कुमार जी को और मुझको, उस आदेश को देखते हुए मुझको लगा कि हम लोग आपस में बटे रहेंगे तो फिर से बिहार में पुरानी स्थिति लौट सकती है। विरासत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, जिसको बढ़ाने का दायित्व नीतीश जी के ऊपर है, वह विरासत फिर से रसातल में जा सकती है। तो नीतीश जी ने मुझको आवाज़ दी और नीतीश कुमार जी के साथ हम खड़े हो गए। पूरा जो कुछ भी उस वक्त मेरे हाथ में राजनीति की दृष्टि से था, सबको न्यौछावर करके नीतीश कुमार जी के साथ हम हो गए। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इन्होंने अपनी पार्टी को जिंदा रखने का काम किया आरएलएसपी को, लेकिन सरासर ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के मन में कुछ भी नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना सर्वस्व राजनीति में जो कुछ भी था सब न्यौछावर करके उनके साथ आना स्वीकार किया था, और वह भी तब जब उन्होंने कहा था कि मेरे साथ आइए, और मुझको भी लगा करना हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि ये अमृतकाल नहीं, अघोषित आपातकाल है। पूरी रिपोर्ट देखिए। ये धमकी की राजनीति से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इसका कड़ा मुकाबला करेंगे। हमारी शराफत को हमारा गहना मानो, हमारी कमजोरी मत मानो। प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपति गौतम अडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है रोज, उस पर तो कोई जांच नहीं होती। सियासत का फलसफा कुछ यूं बदला, गोया मकसद ही हो गया बदला। भारत जोड़ो यात्रा से जोश पाकर देश की सबसे पुरानी पार्टी जिस शहर में अपनी 85वें अधिवेशन की तैयारी कर रही थी, पौ फटने से पहले उसी शहर में ईडी ने दबिश दी। दर्जन भर कांग्रेसी नेता छापेमारी की जद में आए। घर से दफ्तर तक दस्तावेजों की छानबीन होने लगी। कांग्रेसियों की पलटन मीडिया के सामने आई। ईडी की कार्रवाई को सियासी बदला बता गई। ईडी की नई परिभाषा भी बता गई। ये प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति को प्रोत्साहन देगा। हमारा महाअधिवेशन चलेगा 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को। हाथ से हाथ जोड़ो जो टैगलाइन है उसके आधार पर ये महाअधिवेशन हो रहा है, वो चलता रहेगा। ये धमकी की राजनीति से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इसका कड़ा मुकाबला करेंगे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं और
सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले। छत्तीसगढ़ में आज सुबह से लगातार रेड्स चल रही हैं। हमारा महाअधिवेशन भी वहां होने वाला है, ये आप सब जानते हैं। रायपुर में ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस आग बबूला हो उठी। रायपुर से भिलाई तक जब ईडी छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों की सीक्रेट फाइल खोज रही थी, दिल्ली में कांग्रेसियों ने बीते 8 सालों में हुई ईडी की कार्रवाई की फाइल खोल दी। मोदी सरकार की मंशा पर सवालों के शूल बरसाने लगे। कुछ जानकारी देना चाहता हूं। 2014 से अगर अपन शुरू करें, कांग्रेस पे 24 बार, अलग अलग नेताओं पर कांग्रेस में 24 बार रेड हुई ईडी की। वहीं टीएमसी पर 19 बार हुई, एनसीपी पर 11 बार हुई, शिवसेना पर 8 बार हुई, डीएमके 6, आरजेडी 5, बीएसपी 5, बीएसपी 5, टीडीपी 5, आईएनएलडी 3, वाईएसआईआरपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1, एसबीएसपी 1। हमारे कोषाध्यक्ष हैं राम गोपाल अग्रवाल जी, हमारे भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, गिरीश देवांगन एक निगम के चेयरमैन हैं, आरपी सिंह एक प्रवक्ता हैं, विनोद तिवारी हैं और सनी अग्रवाल ये भी एक निगम के चेयरमैन हैं। इनके कार्यालयों पर, इनके निवासों पर सुबह से ईडी की कार्रवाई चल रही है। हमारी शराफत को हमारा गहना मानो, हमारी कमजोरी मत मानो। हम भी कभी आएंगे और जहां हैं वहां भी कुछ दिखा सकते हैं आपको। हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला अभी, जिसकी जानकारी रोज कुछ ना कुछ आती रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपति गौतम अडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है रोज, उनके कारनामे की, सब गैर कानूनी कारनामे, उस पर तो कोई जांच नहीं होती। और भारत जोड़ो यात्रा में जो हमने सफलता हासिल की है, जो परिवर्तन हम लाए हैं हमारे राजनीति में, हमारे संगठन में, वो बरकरार रहेगा। एंड दिस अघोषित आपातकाल, द अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वी हैव इन आवर कंट्री टुडे। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी से बौखलाई कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर सत्ताधारी पार्टी को आईना दिखाया। हेमंत बिस्व शर्मा ने येदियुरप्पा के जिक्र के जरिए बीजेपी के वॉशिंग मशीन होने का मतलब भी समझा दिया। मैं आपको हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा एक व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, अलग अलग रंग के पेपर भारतीय जनता पार्टी निकाल रही थी। साहब ये नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, इन सब में शामिल है। 2014-15 में शारदा चिटफंड को लेकर इनके यहां सीबीआई ने रेड भी की थी। आज हेमंता बिस्वा शर्मा फेयर एंड लवली बन के निकले हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं। और मुझे तो नहीं मालूम, अगर आप में से किसी को जानकारी हो उन केसेस का क्या हुआ तो आप साझा करिएगा। शुवेंदु अधिकारी एक और नाम मैं आपको बताता हूं, येदियुरप्पा तीसरा नाम मैं आपको बताता हूं, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसे अनेक नाम हैं। कांग्रेसियों की जुबानी बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार की कहानी में अडानी का नाम भी आया। सुलगते सवालों के साथ सत्ता की जानिब पैगाम आया। बीजेपी भी कांग्रेस की पोल खोलने लगी, ईडी के पक्ष में जोर जोर से बोलने लगी। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से 2 सवाल करना चाहते हैं और एक सलाह भी देना चाहते हैं। पहले सवाल फिर सलाह। जब मीडिया कुछ छापता है आप उस पर छापा डाल देते हो। जब विपक्ष संसद में आपसे कुछ सवाल करना चाहता है, आप कार्रवाई से वो नाम निकाल देते हो आपके दोस्त का, एक्सपंज कर देते हो। न्यायपालिका इस देश के इतिहास में पहली बार आपने इतनी मजबूर कर दिया न्यायपालिका को कि उनको सार्वजनिक रूप में आकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी। हमारा दूसरा सवाल है फादर ऑफ हिपोक्रेसी से, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं, कि आप अपने परम मित्र गौतम अडानी के महाघोटाले में जांच क्यों नहीं करते, उस पे जवाब क्यों नहीं देते। चलता रहेगा, आज हो सकता है कल भी होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। पर एक बात हम
बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि हमारे लिए हम कोई चीज़ छिपा नहीं रहे हैं। छापे होने दीजिए, हम इसका मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। हमारा महा अधिवेशन चलेगा 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को। हाथ से हाथ जोड़ो जो टैगलाइन है उसके आधार पर यह महाअधिवेशन हो रहा है, वो चलता रहेगा। और भारत जोड़ो यात्रा में जो हमने सफलता हासिल की है, जो परिवर्तन हम लाए हैं हमारे राजनीति में, हमारे संगठन में, वो बरकरार रहेगा। शुक्रिया। के सवाल है? हाँ, यस, सुप्रिया। You want it in English? Well, since 5 o'clock this morning, the Enforcement Directorate, the ED, the organization entrusted by Mr. Modi, ED, Exterminating Democracy, has been raiding our senior colleagues in Chhattisgarh. 5 or 6 of our very senior colleagues have been raided since morning 5 o'clock. This is clearly the politics of vendetta, politics of vengeance, politics of harassment, and this is supposed to be a curtain raiser for the 85th plenary of the Indian National Congress. We are not afraid. We have nothing to hide. We will not be intimidated. I have repeatedly said Mr. Modi's policy of FDI is fear, deceit, and intimidation. This is his real FDI policy. We will not be afraid, we will not be intimidated, we will not be cowed down. The success of the Bharat Jodo Yatra, followed by the Haath Se Haath Jodo Abhiyan, and now the 85th plenary, where about 15,000 delegates are expected to participate. 6 resolutions will be adopted. We have brought about a transformation in Indian politics. We have shaken this government. We are asking 3 questions every day. 14 consecutive days, we have asked questions of the Prime Minister directly on how he has helped Gautam Adani perpetrate this giant fraud and scam on the people of India. He's of course quiet. He's quiet on the Chinese incursions. He's quiet on the Adani Maha Mega scam. And he has unleashed the ED on the Congress party. Where he needs to unleash the ED, he does not unleash it. And of course, those people against whom the ED has been unleashed in the past, after they have joined the BJP, they have Fair and Lovely scream on them and they become innocent. It's what our leader of the opposition and Congress president in the Rajya Sabha described, and which was later expunged as the BJP washing machine. So the raids, I don't know how long the raids will continue, but we are prepared. We will be, most of our leaders will be in Raipur on the 23rd and 24th, 25th and 26th. Our plenary session will be held. If anything, these raids have increased our determination. If anything, these raids have given us a booster dose to be even more aggressive against the Prime Minister and his third-rate politics of vengeance, vendetta, harassment. अरे यार, हिंदी का मैंने अंग्रेजी किया, अभी निम्न स्तर की राजनीति। बंगाली में बोलूं? बंगाली। 8 साल।
आंकड़े देंगे। तो आप ऑपरेशन यूनिटी की बात जो है लगातार हो रही है, कल नीतीश कुमार ने भी बात की और आप छापों के मुतालिक भी पॉलिटिकल रीजन से तो जो ऑपोजिशन यूनिटी पे आप बोलेंगे, स्क्रीनिंग स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर बोलेंगे, उस पर हम नहीं बोलेंगे। क्या सवाल क्या है? सॉरी, ऑपोजिशन यूनिटी इस वजह से भी ऑपरेशन यूनिटी की जरूरत है और जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने एक सुझाव दिया कांग्रेस को, उसके ऊपर देखिए 17 विपक्ष पार्टियों ने जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, जो ईडी के अधिकारों का सवाल जब उठाया गया था और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, 17 पार्टियों ने एक संयुक्त बयान दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो अधिकार दिए गए हैं ईडी को पीएमएलए के संशोधन के माध्यम से, वो हानिकारक हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं और ये एक हथियार है किसी भी सरकार के हाथ में जो विपक्ष के पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और किया गया है। तो इस मामले में 17 पॉलिटिकल पार्टियों ने, और ये अगर आपको याद नहीं होगा, ये स्टेटमेंट मैं आपको फिर से दे सकता हूं, 17 पार्टियों ने, सभी पार्टियों ने एक ही आवाज में एक बयान दिया था कि हम इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हैं और जो अधिकार ईडी को दिया गया है पीएमएलए के संशोधन के द्वारा 2014 के बाद, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक पॉइजन पिल है, जहर के माफिक है। और रोज जो छापे मारे जाते हैं विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो इस सरकार के खिलाफ हैं, वो बिल्कुल सबूत है कि ईडी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में एक हथियार बन गया है प्रतिशोध का, बदला का, उत्पीड़न का। नहीं, मैं आपको याद दिला दूं, अभी हम छत्तीसगढ़ में जो ईडी के छापे हो रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी के बयान पर नहीं। मैं सब लोग ऑपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे होंगे, आज हम ईडी के छापे के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको आंकड़े दिए, ऐसा संयोग, उपयोग, प्रयोग ये क्या है मुझे बताइए कि 95% विपक्ष के ही नेताओं पर रेड्स होती हैं। क्या कारण है कि शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, येदियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, हेमंता बिस्वा शर्मा अचानक साफ हो गए? शुवेंदु अधिकारी जी, तो वो ये सारे सवाल हम सरकार से इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर आप निष्पक्ष होते, अगर आपकी एजेंसियां निष्पक्ष होती तो आज हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री नहीं होते, तो आज येदियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, ये लोग बिल्कुल आजादाना नहीं घूम रहे होते, इन पर भी कुछ कार्रवाई होती। तो कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। तो ये सवाल तो हम पूछेंगे और सवाल सबके सामने, अब तो आम एक एक व्यक्ति, सड़क पर चलने वाले लोग पूछ रहे हैं, उनको हंसी आ जाती है जब वो देखते हैं अपने मोबाइल पे ब्रेकिंग न्यूज आती है, साहब छत्तीसगढ़ में रेड्स हुई, तो उनको समझ में आ रहा है, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाए हुए हैं। ये गौतम अडानी का नाम जितनी बार हम लेते हैं ये उतनी बार परेशान होते हैं। जो 18 घंटे जागते थे, सुना अब 24 घंटे जाग रहे हैं, नींद उड़ गई है। हमें मालूम है क्या हो रहा है, ना केवल हमें मालूम है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं और हम और आप से ज्यादा सड़क पर चलने वाले लोग जानते हैं। Well, I cannot preempt what the talking points in the plenary will be,
But certainly, one of the themes in our political resolution is the misuse of investigative agencies, the subversion of constitutional bodies, the loss of independence of institutions that underpin our democratic structure. Certainly, this is one of the themes of the political resolution. Remember, the Bharat Jodo Yatra was built on 3 pillars. The first pillar of the Bharat Jodo Yatra was economic inequality, to highlight the growing dangers of economic inequality in our country. The second pillar of Bharat Jodo Yatra was increasing social polarization on religion, caste, language, ethnicity. And the third pillar of the Bharat Jodo Yatra was political dictatorship. आज तो अघोषित आपातकाल है, ये अमृतकाल नहीं है, ये आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है. And this was the third pillar of the Bharat Jodo Yatra. So all these 3 pillars will be discussed in Raipur. Economic inequality will be one of the major themes of the economic resolution, undoubtedly. Social polarization will be undoubtedly be one of the themes of the political resolution. And this Aghoshit Apatkal, the undeclared emergency we have in our country today, will certainly be discussed in Raipur. It was discussed, if you may recall, in Udaipur also. And that is why it formed, these 3 pillars were the driving force of the Bharat Jodo Yatra, and they will be the main themes at the Raipur plenary as well. Haji. अभी आपने सुना 10 दिन पहले राहुल जी ने एक बड़ी अच्छी, बड़ी रोचक सी बात कही थी, जो आपने भी दिमाग में जरूर जहन में रखी होगी, कि अदानी जी कई विपक्षी नेताओं को, पार्टियों को एक ले आए, एक कर दिया उन्होंने. मोदी जी नहीं समझ पा रहे कि वो जितना इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं उतना एकता बढ़ती जा रही है. अब यूं तो आप, ये चर्चा का विषय है, लंबी चर्चा इसमें होनी चाहिए, किसी दिन करेंगे, लेकिन आज जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा, मुद्दा कुछ और है, लेकिन आपने सवाल पूछा तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं. 2-3 अलग अलग उदाहरण आप लाकर तुलना हर बार नहीं कर सकते. एजेंसीज का इस कदर दुरुपयोग किया जा रहा है कि कभी कहीं गलती से भी एजेंसी कोई सही कदम उठा ले, तब भी लोग उसको अविश्वास की दृष्टि से देखेंगे. ऐसा भी हो रहा है. अब इससे ज्यादा खुलासा मैं नहीं करूंगा, इस पर आप खुद समझदार हैं. मैं आपको याद दिला दूं कि 3 अगस्त 2022 को 17 पार्टियों ने एक बयान दिया था मिलकर, 3 अगस्त को. और वो बयान क्या था? बयान ये था कि जो पीएमएलए में संशोधन लाए गए हैं इस सरकार द्वारा, वो सही ठहराना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और ये प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति को प्रोत्साहन देगा. और हमने ये भी कहा था 3 अगस्त को कि हम इसकी रिव्यू पिटीशन की बात हमने की थी. पर उसके बाद हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में लग गए. 5 महीने हम भारत जोड़ो यात्रा में लग गए. हम
ये बात थोड़ा पीछे हट गया। पर मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि हम ये रिव्यू पिटिशन जरूर इस बात हम इसको आगे ले चलेंगे। उस बयान में हमने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएंगे और उनसे फिर से मांग करेंगे इस पर पुनर्विचार हो। ये पुनर्विचार हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, वो 17 विपक्ष पार्टियों में सभी पार्टी थे। टीएमसी भी शामिल थी, आम आदमी पार्टी भी शामिल थे और एक इंडिपेंडेंट एमपी कपिल सिब्बल जी भी शामिल थे। मैं समझा नहीं, कमजोर कैसे हो रहा है? हम छापों से कमजोर हो रहे हैं, ये किसने बता दिया आपको? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जयराम रमेश जी ने कहा कि इस प्रतिशोध की राजनीति, इस भय की राजनीति से हम कोई डरने वाले हैं नहीं। आपको लगता है कि हमारे चेहरे पे कोई शिकन कभी नजर आई पिछले 8-9 सालों में? हमें सिर्फ तब शिकन आती है चेहरे पे जब लोगों के साथ जो हो रहा होता है, जब बेरोजगारी बढ़ रही होती है, महंगाई बढ़ रही होती है, कोविड से मौतें हो रही होती हैं, लोग जान गंवा रहे हैं, अखबार वालों पर रेड्स होती हैं, तब हमें बुरा लगता है। हमारे पर आप जितना करना है करिए। आपको बताया था ना राहुल जी ने अभय मुद्रा, ये अभय मुद्रा देख लीजिए हमारी, हम नहीं घबराते। Any other question? Thank you. 12 बजे को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे हैं।